Hello everyone, my name is Sakti Chauhan and today I'm chasing about first generation of computer. First generation in 1946 to 1954. And it is John Ambrose Fleming. A vacuum tube or electrons is device that was first developed by English electrical engineer and physicist John Ambrose Fleming in 1904. वैक्यूम ट्यूब्स का आविष्कार जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने करा था इन 1904 में. इंट्रोडक्शन. Generally, the computer built during the Second War known as the first generation computer. These are considered the first computer and were extremely difficult from the computer we see today because the first generation computer were extremely difficult to program, designed from the taking tasks, and they were made into the general market. This primitive computer released a vacuum tubes and magnetic fields. जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान इस कंप्यूटर का फर्स्ट जनरेशन का आविष्कार करा गया था. ये कंप्यूटर आज के जो हम लोग कंप्यूटर देखते हैं इससे कई गुना अलग है और इसे प्रोग्रामिंग करना या कोई भी टास्क करना बेहद मुश्किल होता था जो आज के डेट में कंप्यूटर में नहीं हो रहा. सेकेंड वन. नेक्स्ट. नेक्स्ट. इनपुट और आउटपुट. Early earliest computer had no input device or any types of software as we know see today. They were hardwired to perform specific mathematical calculation. A computer's function could only be changed by the running in circuits. By the times of ENIAC spread in 1951, control panel or the front of computer allowed simple input or a series toggle switch and buttons. The toggles are used to input the first computer program and data in format. इनपुट और आउटपुट. जो हम अर्ली कंप्यूटर में जो हम लोग देख रहे हैं जो इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस है टुडे वी हैड वायर टू फॉरवर्ड और इसका हम लोग उपयोग कैलकुलेशन के लिए करते थे. इसमें कई प्रकार के फंक्शन होते थे. भाई यूनिक अपेयर जो यूनिक है इन 1951 में आया था. इसमें जो कंट्रोल पहले अलाउड इनपुट और सीरीज जो हम इसमें टॉगल्स या बटन के हेल्प से यूज करते थे. नेक्स्ट वन इज नेक्स्ट. Characteristics of computer at World War II. Weight of computer 30 tons. Dimension of computer 50 into 30 foot. Electricity required 1,50,000 watt. Current required alternating current. Computer performance single task to a time. Solving times 200 to 2000 microseconds. Vacuum tubes 80,000 tons. Storage very low. Area required 80,000 स्क्वायर फीट. जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जो कंप्यूटर इसके जो कैरेक्टर्स हैं वो था. व्हाट आर वैक्यूम ट्यूब्स. A sealed glass containing a near vacuums that allow the free passage of electric current. And second, a device that control electric current flow in a high vacuum between electrodes to which an electric potential difference have been applied. And last one is types of vacuum tubes, nodes tubes, toroid tubes, and tetrode tubes, pentrode tubes. Over to Prince. Prince. Yes, sir. Hello everyone, my name is Prince Chennai and my topic is about magnetic drums. The magnetic drums was invented by Gustav Toschek in Austria in 1932. What is magnetic drum? मैग्नेटिक ड्रम अगर बोले तो एक मेटेलिक सिलेंडर है जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से ढका होता है चारों तरफ से, जो मैग्नेटिक पोलैरिटी को चेंज कर कर डाटा को स्टोर करता है. मैग्नेटिक ड्रम डाटा स्टोर करता है उसके सरफेस पे. मैग्नेटिक ड्रम की मेमोरी आल्सो यूज फॉर सेकेंड स्टोरेज एंड
मैग्नेटिक मैग्नेटिक ड्रम जो बना होता है वो आयरन ऑक्साइड के मटेरियल से बना होता है। एंड नाउ माय टॉपिक इज लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर वर वेरी लार्जर इन साइज, मतलब जो पहले के जमाने के कंप्यूटर थे वो बहुत बड़े साइज के थे। उनका साइज इतना बड़ा होता था कि उनके लिए एक रूम में भी एक रूम चाहिए होता था, या फिर 15 to 30 फुट का एरिया चाहिए होता था। जो पहले के ज़माने के कंप्यूटर होते थे उसमें प्रोग्रामिंग लिमिटेड अकाउंट में होती थी, और बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती थी वो मशीन लैंग्वेज के हिसाब से। एंड यूजुअली दे वर हैंड राइड, एंड द एप्लीकेशन वर लिमिटेड। One of the problem with vacuum tubes was they took up large amount of space. वैक्यूम ट्यूब्स बहुत मात्रा में लगाए जाते थे पहले। थाउजेंड थाउजेंड वैक्यूम ट्यूब्स लगते थे, और जिसकी वजह से हीट भी काफ़ी होती थी। जो वैक्यूम ट्यूब होते थे वो काफ़ी जल्दी हीट हीट प्रोड्यूस करते थे, जिसकी वजह से पूरा कंप्यूटर गर्म हो जाता था। और फिर उसको एयर कंडीशनर की रिक्वायर्ड थी। एयर कंडीशनर और उसकी मेंटेनेंस के लिए भी बहुत खर्चा लगता था। नेक्स्ट पेज। जो पहले जमाने में देखा गया कि जो स्मॉल टाइप के वैक्यूम ट्यूब्स थे उनमें वो बहुत जल्दी खराब हो जाते थे, और जल्दी खराब होने होने की वजह थी उन पे ओवरलोड पड़ना, या फिर थाउजेंड ऑफ वैक्यूम ट्यूब के वजह से उन पे हीट का प्रेशर पड़ना। और फिर वो उनका इफेक्ट क्या होता था कि वो कोने पे ब्लैक ब्लैक सा दिखता था। और और ऑपरेटिंग स्पीड बहुत लो थी। लिमिटेड, ये भी बहुत बड़ा लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर है कि पहले के जो कंप्यूटर थे उनकी ऑपरेटिंग स्पीड बहुत ही लो थी, और पावर कंजप्शन बहुत ज़्यादा हाई थी। और एयर कंडीशन रिक्वायर्ड तो है ही है। एंड कंज्यूम अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। पहले के कंप्यूटर बहुत एनर्जी, या फिर बोल सकते हैं जिसको बहुत करंट यूज करते थे, रिक्वायर्ड था उनको करंट। एंड नॉट पोर्टेबिलिटी, एयर कंडीशन इज रिक्वायर्ड, कमर्शियल प्रोडक्शन वाज डिफिकल्टी एंड कॉस्टली। हाँ, उसकी पहले के जमाने के जो कंप्यूटर थे उनको मेंटेनेंस के लिए बहुत खर्चा लगता था। एंड दैट माय टॉपिक इज कंप्लीट। ओवर टू रमनप्रीत। नीड दैट टाइम। अच्छा, उस समय क्या चाहिए था? उस समय चाहिए था कि मोर रिलेबिलिटी हो, बेटर पोर्टेबिलिटी हो, लेस हीट जनरेशन हो, और स्मॉलर साइज हो, और फास्टर कंप्यूटर है। जो अभी के टाइम पे है जो अभी के टाइम पे ये सारे पहले नहीं होते थे। पहले के कंप्यूटर फास्टर नहीं होते थे, साइज भी उनका छोटा नहीं था, हीट भी बहुत ज़्यादा जनरेट करते थे, पोर्टेबिलिटी अच्छी नहीं थी, एंड रिलेबिलिटी इज ऑल्सो नॉट गुड। ओवर टू रमनप्रीत। Hello everyone, my name is Ranpreet Singh and my today's topic is second generation of computer. The transistor technology was introduced, computers were smaller and were relatively expensive. जो ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी थी वो सेकेंड जनरेशन में इंट्रोड्यूस हो गई थी, और जो कंप्यूटर्स के साइज थे वो रिलेटिवली फर्स्ट जनरेशन से छोटे हो गए थे और एक्सपेंसिव हो गए थे फर्स्ट जनरेशन से. तो आवर फर्स्ट टॉपिक इज ट्रांजिस्टर्स. तो लेट्स स्टार्ट. जो ट्रांजिस्टर थे वो सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के एक टाइप से हॉलमार्क था. ठीक है, और इसको बनाया गया था 1948 के अंदर बाय डॉक्टर विलियम शॉकली. और इसको बनाने के जो रॉ मटेरियल थे वो तीन लेयर से बने थे: बेसिक, कलेक्टर और एमिटर. ये डॉक्टर विलियम शॉकली की फोटो है. 1959 1959 के अंदर आईबीएम ने अपना फर्स्ट फुल्ली ट्रांजिस्टराइज कंप्यूटर लॉन्च कर दिया था जिसका नाम था द 7000 सीरीज. और 1959 के अंदर ही कॉबल लैंग्वेज इन्वेंट हुई थी जो थी कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज. एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी जो आज भी बहुत सारे बिजनेस वाले एप्स के अंदर यूज होती है. और इसको जो है बनाया गया था बहुत सारी अलग अलग कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर्स के इंजीनियर्स ने मिलके एक टीम बनाई थी. उन्होंने इस लैंग्वेज को इन्वेंट किया था जिनकी टीम को जो है लेड कर रहे थे ग्रेस होपर ऑफ स्पेरी रैंड.
ये था IBM का जो द 7000 सीरीज जो उन्होंने लॉन्च किया था, फुल्ली ट्रांजिस्टराइज्ड। ओके, 1960। तो डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन DEC ने जो है अपना फर्स्ट लॉन्च किया था PDP-1, जिसके अंदर सबसे फर्स्ट टाइम आया था वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल यानी कि VDT, जो एक मॉनिटर होता था और उसके साथ एक कीबोर्ड होता था ऐसे। ये उसकी इमेज है। एक ये मॉनिटर है जो VDT है, और उसके नीचे जो कीबोर्ड है ये। और 1960 के अंदर ही AT&T ने जो अपना फर्स्ट कमर्शियल मॉडम भी लॉन्च किया था, जिसको कि नाम दिया गया था डाटा फोन। और इससे हमारे को हेल्प मिलती थी ये कि जो हमारी जो एनालॉग फोन लाइंस होती थी, अब हम उसके थ्रू ही अपना डिजिटल डाटा भी ट्रांसमिट कर सकते थे। और जो इसको सबसे फर्स्ट टाइम यूज किया गया था वो था सेज एयर डिफेंस सिस्टम के अंदर, इसको सबसे फर्स्ट टाइम यूज किया गया था। ये डाटा फोन कुछ ऐसा दिखता होता था 1960। अब गेमिंग। तो सबसे फर्स्ट टाइम गेमिंग इंट्रोड्यूस हुई थी सेकंड जनरेशन के अंदर ही। जो हमारी फर्स्ट गेम इन्वेंट हुई थी वो थी स्टार वॉर्स, नहीं स्पेस वॉर, सॉरी। तो जो फर्स्ट गेम स्पेस वॉर रिलीज हुई थी, इसको जो है बनाया गया था स्टीव ने। 1962 के अंदर स्टीव ने बनाया था, और उसके साथ अलग अलग MIT कंप्यूटर प्रोग्रामर्स ने भी बनाया था। और जो इसका कोड था वो जो है PDP-1 असेंबली लैंग्वेज में लिखा गया था। PDP-1 वही है जो VDT पे बेस्ड थी, वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल पे, क्योंकि गेम खेलने के लिए वो मॉनिटर और कीबोर्ड चाहिए होते थे, तो उसी असेंबली लैंग्वेज में इस गेम को लिखा गया था। और जो डिजिटल इक्विपमेंट थी, उन्होंने जो है इस गेम को जो है यूज किया था अपने मशीन्स में टेस्ट करने के लिए, कि इंस्टॉल हो रही है या रन हो रही है, ये सब के लिए। और 1962 के अंदर ही IBM ने जो है अपना रिलीज की थी 2 MB की 1311 रिमूवेबल हार्ड डिस्क इन्वेंट हुई की गई थी, जो कि हमको स्पीड जो है हार्ड डिस्क वाली देती थी, लेकिन वो पोर्टेबल थी एक मैग्नेटिक टेप की तरह। ओके, तो $1,20,000 जो है जो स्पेस वॉर गेम बनी थी, उसकी एक डिस्क की कॉस्टिंग थी 1,20,000। और जो उसको आज के टाइम में अगर हम देखें तो वो था $1,75,000। तो ये बहुत ज्यादा थे एक गेम के हिसाब से। इस गेम को खरीदने के लिए इतने पैसे पे करने पड़ते थे, और ये उस टाइम पे 53 यूजर्स ने खरीदी थी, तो 53 डिस्क उसकी कॉपी बिकी थी। स्केच पैड इंट्रोड्यूस हुए थे सेकंड जनरेशन के अंदर, जो इसको एक 1963 के अंदर एक MIT ग्रेजुएट स्टूडेंट इवान सदरलैंड ने बनाया था, जो कि VDT टेक्नोलॉजी पे ही चलता था। और इससे जो है हम लाइट पेन से जो है हम ड्रॉ कर सकते थे, जो मॉनिटर के ऊपर स्क्रीन के ऊपर जो हम लिखते हैं वैसे हम इस पे ऊपर ड्रॉ वगैरह कर सकते थे। और जो ये फ्यूचर ग्राफिक डिजाइन का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था, इससे ही अब जो आज हम बड़ी बड़ी स्क्रीन के ऊपर लिख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तो यही था, यहीं से स्टार्ट हुआ था, इन्होंने इन्वेंट किया था। और द फर्स्ट वर्जन ऑफ ASCII यानी कि अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इसको जो है पब्लिश किया गया था अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशन द्वारा। ये हमको परमिट करता था कि हम जो डिफरेंट डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स ने जो कंप्यूटर्स बनाए हैं, अब वो सारे भी एक दूसरे के साथ अपना डाटा एक्सचेंज कर सकते थे। तो अब मेन फीचर ऑफ सेकंड जनरेशन एक बार देख लेते हैं। जो यूज ऑफ ट्रांजिस्टर था, वो था जो ट्रांजिस्टर थे वो एक गेट और स्विच की तरह काम करते थे, जो फ्लो ऑफ करंट को जो है कमांड करते थे। जैसे कि मान लो सर्किट ऑन है तो वो फ्लो करने देंगे करंट को, अगर सर्किट ऑफ है तो फिर जो है उस करंट को रोक देंगे। तो ऐसे ये ट्रांजिस्टर्स का यूज ये होता था, एक स्विच या गेट मान सकते हो। और एक था रिलायबल एज कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन। तो ऑब्वियसली जो फर्स्ट जनरेशन थी उससे काफी ज्यादा रिलायबल था सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। मॉडर्न था थोड़ा, स्मॉलर साइज एज कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जो साइज में छोटा हो गया था ऑब्वियसली, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर बहुत बड़े थे, सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर छोटे हो गए थे साइज में। जनरेट लेस इलेक्ट्रिसिटी, कंज्यूम लेस इलेक्ट्रिसिटी, जो कम बिजली लगती थी एज कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन। फास्टर देन फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, फास्ट थे, और पर कॉस्टिंग बढ़ गई थी, एक्सपेंसिव हो गए थे फर्स्ट फर्स्ट जनरेशन से।
सपोर्ट मशीन एंड असेंबली लैंग्वेजेस लाइक फोर्टन, जो हाई लेवल असेंबली लैंग्वेज होती हैं, कोडिंग लैंग्वेज होती हैं, तो वो ये सपोर्ट कर सकते थे, जैसे कि फोर्टन और कोबल जो वही कॉमन बिजनेस लैंग्वेज थी। बस। थैंक यू।